Hello everyone. Yesterday in solution video I was explaining you the like strength of solution, how you will find out the strength of the solution. Means like suppose the percentage weight by weight, percentage weight by volume, percentage volume by volume. This is the unit for कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एनी सोल्यूशन. ये सब एक तरह की यूनिट है जिससे हम किसी सोल्यूशन की स्ट्रेंथ को पता करते हैं. तो जनरली थियरी पार्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन. टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू द फ्यू क्वेश्चन एंड फ्यू ट्रिक्स like in shortcut method how you will solve the question of objective type also, like that is given in your exam like JEE as well as JEE mains as well as our NEET. Clear? So that I am going to give few questions, that all question is given in different competitive exam. Like first question, how much ml of, note down the question, how much ml of ethanol should be added in 250 ml of H2O? How much ml of, question number first, how much ml of ethanol should be added in 250 ml of H2O to obtain a solution containing 70% volume by volume. Like already in previous video I was explaining you the percentage strength, percentage weight by weight, percentage weight by volume, percentage volume by volume. तो this is the first question. इसको pause करके आप खुद से try करेंगे and I hope you will solve this question. But what mistake you have done, that also I will like explain you, and how you will solve this question, that also I am going to explain you. Like generally what you have done, maximum 90% student, they can see that 70% weight by volume, then here given how much ethanol should added, it means they think that this is the solute and this one is the solvent. This one is the solvent and this is percentage weight by percentage volume by volume. So generally they will put the value of percentage volume by volume, then that volume of solute, volume of solution into 100 formula. So when you will solve by that method, so then question will wrong. Here given how much ethanol should be added in 250 ml of H2O to obtain a solution containing 70% volume by volume. It means solution is 30% right now, because if 100% when you will take 100%, तो 70% अगर माइनस कर देंगे तो आपको 30% मिलेगा. आपका ये देखिए, इसमें कह रहा है कि कितना हम एथेनॉल ऐड कर दें कि सोल्यूशन इतना हो जाए. तो कितना है पहले ये पता करना पड़ेगा. क्लियर? ये पॉइंट समझिएगा क्या मैं बोल रहा हूं. 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम गिवन, तो डायरेक्टली बच्चे इसी को लिख देते हैं और फार्मूले पे वैल्यू पुट करते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है. जैसा कि अगर पॉज करके आप किए होंगे तो आप 100% यही चीज लिखे होंगे पहले. तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़िए. कह रहा है कि हाउ मच एथेनॉल शुड बी एडेड इन 250 ml ऑफ H2O टू ऑब्टेन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. मतलब कितना ऐड करें कि ये 70% हो जाए, न कि ये 70% है. गेटिंग और नॉट? तो इट मीन्स कितना है, तो टोटल अगर 100% है तो 70% माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 30%. तो इट मीन्स परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वैल्यू, लाइक व्हेन यू विल राइट परसेंटेज volume by volume, so here you will write volume of solute upon volume of solution into 100. Clear? Volume of solute upon volume of solution into 100. तो इन प्लेस ऑफ परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जो वैल्यू ये दिया हुआ है इसको नहीं रख के हमको किसको रखना है, इसको. क्लियर? तो हियर यू विल राइट 30%. Clear? That is equal to volume of solute. You will take the solute V volume. Suppose you have taken V volume, and volume of solution in place of volume of solution when you will write, it means, what is the meaning of solution? Already explained. Solution means solute plus solvent.
एनी सोल्यूशन हैविंग टू कंपोनेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो यहाँ पे तो हमने लिख दिया V वॉल्यूम, इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इज V। तो हियर आल्सो यू विल राइट V सॉल्यूट प्लस हाउ मच सॉल्वेंट, 250 ml of H2O. So this one is given solvent. It means solvent volume is equal to, solvent volume is 250 ml. So here you will write 250 ml. I hope everyone getting this point. Multiply by 100. This is clear or not? Now if you will solve this question, it means 30 into V plus 250 is equal to V into, you see this one is the 100, so 100 you can take here, divided by 100 into V. Now 30, this one is cancelled, 3V plus 250 is equal to 10V, then 10V, 3V plus 250 into 3, to 3 into 250 is equal to 10V, then 3 into 250 is equal to 10V minus 3V, then 7V you will get, 7V is equal to 750, then V is equal to 750 divided by 7. So when you will solve, that is equal to 7 1 ja 7, 107 point something ml. Getting or not? We will solve this question. Clear? So this question is given one time in objective type competitive exam like NEET. You see that this is very good question, and that can maybe asked in JEE mains type question, not advanced, mains type question. Clear? I hope. One more times you see that, जिसको नहीं समझ में आया फिर से देख लो. It is very easy question. How much ethanol should be added in 250 ml of H2O to obtain a solution containing 70% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम. अब ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझना, इजी क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा सोचना है. कितना एथेनॉल ऐड कर दें कि कोई सोल्यूशन 70% हो जाए, तो कितना परसेंट था वो, तो टोटल तो 100% है, तो 100 minus 70 means 30%. So when you will put here value 30%, 30% is equal to V divided by V plus 250 into 100. Now you will calculate this V is equal to 107 point something it will come. I hope everyone understood. Now second question, note down. This is the first question. अब यहाँ पे एक चीज और आपको बता दें कि अगर परसेंटेज वेट बाई दैट वेट बाई वेट एंड परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम की बात करें तो हाउ विल फाइंड आउट द रिलेशन, बिकॉज हियर परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम ऑफ यूरिया इज गिवन. तो राइट डाउन सेकंड क्वेश्चन, इन एक्वस सोल्यूशन कंटेनिंग, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन एक्वस सोल्यूशन containing 40% weight by volume of urea, 40% weight by volume of urea. Clear? Density of that solution is given, density is equal to, that is 1.2 gram per ml. This is the density. Clear? Find out the mass of solvent. Find out the mass of solvent. This is find out the mass of solvent. Now 40% weight by volume means, what is the meaning of 40% weight by volume urea? Very simple. 40% means 40 gram urea dissolve in 100 ml of solution. 100 ml of solution means 100 ml solution में 40 ग्राम यूरिया डिजॉल्व है, दैट इज वाई रिटन 40% वेट बाई वॉल्यूम यूरिया. क्लियर? अब दिस इज द 100 ml ऑफ सोल्यूशन एंड क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड आउट द वेट ऑफ सॉल्वेंट. तो फर्स्ट यू फाइंड आउट द वेट ऑफ सोल्यूशन. तो यू ऑल नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम. देन व्हाट इज द मास ऑफ सोल्यूशन? D into V.
density is given how much, 1.2, and volume 100 ml, it means 120 gram. This is the weight of solution. This is the weight of solution. Now in question here, find out the mass of solvent. So you all know that is weight of solution is equal to weight of solute plus weight of solvent. बोलो सॉल्यूशन कितना हो गया 120, सॉल्यूट कितना है 40 ग्राम, देन बताओ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, देन W ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू W of solvent is 120 minus 40, that is equal to 0, and here 80 gram. This is the answer. Clear? So this is not very tough question, very easy question. 40% weight by volume urea solution. अब बेटा 40% weight by volume urea solution is given. अगर मैं कहूँ कि find out relation between percentage weight by weight and percentage weight by volume, तो ये एक आर्टिकल समझ के इसको कर लेना. ये शॉर्टकट मेथड है कि अगर परसेंटेज वेट बाय वेट दिया हो और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम पूछ रहा हो तो एक लाइन में आप सॉल्व कर सकते हो. इट इज नॉट वेरी टफ. एक फार्मूला बना लेते हैं, वेरी इजी फार्मूला. दिस क्वेश्चन आई होप एवरीवन इज रिटन. चलो इसको अच्छे से लिख देता हूं. नोट डाउन एवरीवन. relation between percentage weight by weight and percentage weight by volume, इनके बीच क्या रिलेशन होगा जरा देखो. बहुत इजी है. इट्स वेरी टफ. इट्स वेरी इजी, सॉरी, इट्स वेरी इजी. देखो परसेंटेज वेट बाय वेट, देखो कैलकुलेशन में करके आपको दिखा दे रहा हूं, लेकिन आपको पूरा कैलकुलेशन लिखने की या रटने की जरूरत नहीं है. सिंपल सा फार्मूला जो आएगा वो आप याद कर लेना. परसेंटेज वेट बाय वेट मींस दिस इज द वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन दिस इज द वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. अगर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ले लें, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तो क्या लिखोगे, दिस इज द weight of solute again, and here volume of solution into 100. जरा देखो दोनों डिवाइड कर दीजिए. सपोज दिस वन इज 1 नंबर, दिस वन इज 2 नंबर. इसको दोनों को डिवाइड कर दिया तो दोनों का रिलेशन आ गया. 100 कैंसिल. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूट कैंसिल. तो व्हाट यू विल गेट, परसेंटेज वेट बाय वेट अपॉन परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन. देखो ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा. जिसको समझ में आ गया बता दो. सही है, करेक्ट. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन. बोलो क्लियर. वॉल्यूम को अगर वेट में कन्वर्ट करना है तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम. तो मास इज इक्वल टू डी इंटू वी लिख सकते हैं. मास इज इक्वल टू डी इंटू वी. बोलो तो इस वेट ऑफ सॉल्यूशन की जगह आप क्या लिख सकते हो, डी इंटू वी लिख सकते हो. तो अगर हम यहाँ पे डी इंटू वी लिख दें और यहाँ वी पहले से है, दिस इज द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी कैंसिल हो जाएगा. नीचे क्या बचेगा 1 बाई डी, और डी कहाँ चला जाएगा, बोलो 1 बाई डी. डी यहाँ चलाएगा, या आप इसको 1 बाई डी अगर आप ऐसे लिखोगे, परसेंटेज वेट बाई वेट अपॉन परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 बाई डी, बिकॉज वी कैंसिल. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम. डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, तो m इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, then m is equal to d into v. v is the
वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, दिस इज द डेंसिटी। तो आप यहाँ पे मास ऑफ और वेट ऑफ सोल्यूशन की जगह क्या लिख सकते हो, d इंटू वी, वी कैंसिल, यू विल गेट 1/d। अब बताओ क्या रिलेशन बन जाएगा इन दोनों के बीच, बोलो। परसेंटेज, देखो परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाई वेट, यहाँ पे आपको 1/d हो गया, इसका मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए इसमें, यू विल गेट द रिलेशन। तो इजिली यू विल गेट द रिलेशन बिटवीन द परसेंटेज वेट बाई वेट एंड परसेंटेज। आई होप समझ में आ गया होगा ये बात, बोलो सबको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ये बात। तो क्या मिल जाएगा आपको, परसेंटेज वेट बाई वेट इज इक्वल टू 1/d इंटू परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, आइदर परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाई वेट इंटू डी, बोलो ठीक है। आप इसमें कन्वर्ट कर दो, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाई वेट इंटू डी, आपको एक चीज मिल जाएगा। दिस इज द वन रिलेशनशिप, आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये चीज बस दिमाग में रखना है। ओके, हम इस पे क्वेश्चन अभी देते हैं, आपको क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। क्लियर, बोलो क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। Now question number 3, what is given, 20 gram urea is dissolved in sufficient water to produce 2 liter of solution, determine percentage weight by volume and molarity। तो लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, 20 ग्राम यूरिया dissolved in sufficient amount of water to make the solution value is 2 liter। 20 gram urea is dissolved in sufficient amount of water to make the solution 2 liter, then determine the percentage weight by volume first and second one is the molarity। So how we will determine 20 gram urea dissolved in 2 liter of solution, 20 gram urea dissolved in water and make the solution 2 liter। So this is the volume of solution। तो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम आपको निकालना है, कितना है 20 ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2 लीटर मीन्स 2000 ml इंटू 100, 20 कैंसिल, दिस वन इज कैंसिल, मीन्स percentage weight by volume is equal to 1। clear, 1% weight by volume। clear, now molarity, how will find out the molarity? Molarity is equal to n by v in liter, n by v in liter means that is weight upon molecular weight into 1000 upon v ml, if v is given in ml, so everything is given, weight is given, what is the weight, weight is given 20 gram। Now urea weight is given, तो urea formula NH2CO NH2, this is the first organic compound which discovered from inorganic compound। ये भी एक बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा डिस्कवर हुआ था, तो ये भी यहीं पे देख लो इसका आंसर, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट। When you will heat the ammonium cyanide, you will get NH2C double bond O NH2, urea। This is ammonium cyanide. When you will heat, you will get the urea। So this is the ammonium cyanide is inorganic compound and this one is the organic compound। So first organic compound which discovered from inorganic compound is urea। अब देखो यूरिया का फॉर्मूला क्या है आपका, यूरिया फॉर्मूला NH2C double bond O NH2। अब मॉलिक्यूलर वेट आपको याद रखना चाहिए, देखो नाइट्रोजन 14 + 2 + 12 + 16 + 14 + 2 दैट इज इक्वल टू 60। याद रखना, एक बार आ गया अब हमेशा याद रखना। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया 60। व्हाट इज द फॉर्मूला NH2CO NH2।
तो हियर 20 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 1000 एंड VML करेंगे तो कितना लीटर सोल्यूशन है? 2 लीटर। तो 2 लीटर सोल्यूशन मीन्स 2000 ml सोल्यूशन। तो यहाँ पे क्या वैल्यू रखोगे? 1 2 3 कैंसिल, 1/2, दिस वन 0 0 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 2/12, 1/6 मोलर। दिस इज द molarity of the solution. Clear? I hope. This is the third question. I hope it is clear, everyone. Clear. Next, this is also very important. First organic compound is discovered from inorganic compound. Now next is the next question is given, question number 4. 30 gram of urea dissolved in 45 gram of water, determine the percentage. Now question number 4, 30 ग्राम, देखो यूरिया से मेरा कुछ खास लगाव हो गया लग रहा है। यूरिया dissolve in how much gram of water? That is 45 gram of water, gram of H2 water आ गया। Then find out percentage weight by weight, and second one is the mole fraction. First A, percentage weight by B, mole fraction of urea as well as mole fraction of H2. चलो भाई परसेंटेज देखो, 30 ग्राम ऑफ यूरिया dissolved in 45 gram of water. तो how you will find out the percentage weight by weight? What is the meaning of percentage weight by weight? Percentage weight by weight is equal to, that is weight of solute, ये फार्मूला सबको मालूम है, दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ये सबको पता है। अब बताओ वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 30 ग्राम, बोलो 30 ग्राम। और वेट ऑफ सॉल्यूशन मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो दिस वन इज सॉल्यूट एंड दिस वन इज द सॉल्वेंट। कैसे पता चला कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट? मैंने पहले बताया था, जिसका नंबर ऑफ मोल्स कम होगा वो क्या होगा? सॉल्यूट। अगर 30 को 60 से डिवाइड कर दोगे तो ये 1/2 मोल हो गया। Why? Because mole is equal to weight upon molecular weight, और 45 ग्राम है तो mole of H2O when you will find out, then mole 45 ग्राम divided by 18, तो that one is more than this one, तो that is why it act as solvent and it act as solute। आपको पहले बताया था कि मोल जिसका ज्यादा होगा क्या होगा? सॉल्वेंट, और जिसका मोल कम होगा वो क्या होगा? सॉल्वेंट। तो 30 + 45 × 100, तो you will get 30 divided by 75 into 100, 3 4, that is equal to 120 divided by 3, that is equal to 40% weight by weight. Clear? तो दिस इज द परसेंट वेट बाई वेट। फिर से एक बार देख लो, 30 ग्राम यूरिया dissolved in 45 gram of water, so this one is solvent, this one is the solute. When you will add both the weight, then you will get the weight of solution. Weight of solute is equal to 30 divided by solution into 100, so you will get percentage weight by weight. Clear? Second one is the that mole fraction. अब देखो mole fraction क्या होता है? मोल तो आपको निकालना भी पड़ेगा। देखो दो कंपोनेंट, सेकेंड यूनिट बी, पहला क्या दिया है? 30 ग्राम ऑफ यूरिया एंड यू डिजॉल्व विद द 45 ग्राम ऑफ H2। बताओ दोनों का वेट दिया है, दोनों के मोल को कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? 1/2 मोल, और ये कितना हो जाएगा? 45 डिवाइडेड बाई 18। क्लियर? तो दिस इज द मोल ऑफ H2O एंड दिस वन इज द मोल ऑफ, बोलो, यूरिया। समझ में आ रहा है सबको? मोल कैसे निकालोगे? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मोल फ्रैक्शन बताया था, मोल फ्रैक्शन टोटल मींस 1, तो अगर हम मोल फ्रैक्शन बताया था उसके बटे टोटल, तो अगर इसका मोल पूछ रहा है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इज इक्वल टू, बोलो, मोल ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाई मोल ऑफ यूरिया प्लस मोल ऑफ वाटर। दिस फॉर्मूला ऑलरेडी आई एक्सप्लेन यू। तो मोल ऑफ यूरिया इज इक्वल टू, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इज इक्वल टू, मोल कितना है? 1/2 मीन्स 0.5 डिवाइडेड बाई 0.5 प्लस ये दैट इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाई 18। आप कर लीजिएगा, जितना आएगा वैल्यू रख दीजिएगा। क्लियर? एक्स ऑफ यूरिया इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाई 0.5 प्लस 45 बाई 18।
दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। अब देखो अगर इसको कैलकुलेट करोगे, दूसरा तो कुछ पता ही नहीं करना है, एक्स ऑफ यूरिया प्लस एक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1। तो बताओ x ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स ऑफ यूरिया। एक बार कैलकुलेशन कर लेना और उसको 1 से माइनस कर देना, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। क्लियर? आई होप अंडरस्टूड। आप कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, x ऑफ वाटर करोगे तो क्या आ जाएगा, ये वाटर वाला पोर्शन ऊपर और सोल्यूशन दोनों का नीचे। क्लियर? तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 is given. Question number 5 is given. An aqueous solution containing 28% weight by weight KOH. Question number 5. 28% weight by weight KOH. Potassium hydroxide. Density is 1.25. Density is 1.25. Then find out the mole fraction of KOH. Mole fraction of KOH, first question. Second question is given percentage weight by volume, percentage weight by volume. And third question is given molarity, capital M. Clear? So how we will solve this question? 28% weight by weight KOH solution is given. What is the meaning of 28%? It means 28 gram KOH dissolve in 100 gram of solution H2O, because here given aqueous solution. This one is given 28% weight by volume KOH, aqueous solution यहाँ given. Aqueous means water. तो ये किस में घुला हुआ है, पानी में। अब बताओ ये इतना ग्राम है, परसेंटेज वेट बाय वेट दिया है तो इतने ग्राम में घुला हुआ है, तुमको निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन। तो बताओ 100 ग्राम वाटर में घुला हुआ है, 100 ग्राम सोल्यूशन में घुला हुआ है, सॉरी 100 ग्राम सोल्यूशन में घुला हुआ है। तो बताओ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे, सॉल्वेंट इज इक्वल टू सोल्यूशन माइनस सॉल्यूट। सोल्यूशन कितना है 100 ग्राम, सॉल्यूट कितना है 28। अब ये आपका कितना हो जाएगा बोलो 2, और यहाँ पे 9 7 72 ग्राम क्या हो गया बोलो H2O वाटर, 72 ग्राम वाटर। अब बताओ सॉल्वेंट में मिल गया, सॉल्यूट में मिल गया, मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। x ऑफ KOH इज इक्वल टू उसके बटे टोटल, जिसका मोल पूछेगा, मोल फ्रैक्शन पूछेगा उसके मोल बटे टोटल। तो x ऑफ KOH इज इक्वल टू मोल ऑफ KOH अपॉन मोल ऑफ KOH प्लस मोल ऑफ बोलो सॉल्वेंट मीन्स वाटर। क्लियर? नाउ x ऑफ KOH इज इक्वल टू मोल कैसे निकालोगे, बताओ पोटेशियम, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ K, KOH कितना हो जाएगा एटॉमिक मास 39 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस 1, तो दैट इज इक्वल टू 40 और प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 56। तो व्हाट इज द, दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ KOH। नाउ n ऑफ KOH कितना है 28 डिवाइडेड बाई 56, दिस इज द मोल ऑफ KOH। नाउ अगेन डिवाइडेड बाई 28 डिवाइडेड बाई 56 और प्लस 72 डिवाइडेड बाई 18, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH। कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेशन तो कर लोगे, सीधा सीधा है। दिस इज इक्वल टू 1/2 बोलो, दिस इज इक्वल टू 1/2, यहाँ भी 1/2 हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करके बस मोल फ्रैक्शन निकाल लेना। क्लियर? नाउ परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इज गिवन, व्हाट इज द डेंसिटी, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी इज इक्वल टू बोलो मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू m by d। अब टोटल 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन दिया है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 1.25, दिस इज इक्वल टू मास। अब नाउ इफ यू वांट टू सॉल्व दिस परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, हाउ विल सॉल्व, देखो बेटा ये सब इजी क्वेश्चन है, बट सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं। बताओ परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वेट ऑफ सॉल्यूट 28, वेट ऑफ सॉल्यूशन दिस वन इज गिवन, दिस वन इज द दिस वेट ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम
देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 डिवाइडेड बाई 1.25, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 28 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 1.25 इंटू 100, तो दिस इज द परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। नाउ हाउ विल सॉल्व द मोलैरिटी, थर्ड क्वेश्चन इसमें जो दिया हुआ है मोलैरिटी, मोलैरिटी इज इक्वल टू N बाई वी लीटर, वी लीटर ऑफ सोल्यूशन, तो सोल्यूशन कितना है मालूम ही है, मोल कैसे निकालोगे 28 डिवाइडेड बाई 56, दिस इज द मोल ऑफ सॉल्यूट एंड वी लीटर लेना है, और यहाँ पे वी किस में दिया है ml में, तो कैसे करोगे बताओ, ml को कन्वर्ट करोगे तो 100 डिवाइडेड बाई 1.25 इंटू 1000, ये आपका क्या हो गया मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अंडरस्टूड? तो दिस फिफ्थ क्वेश्चन आल्सो सॉल्व। I hope you all understood this 5 question very easily. Next video I will give you the few tricks, very short time you will solve this type of question. I will give the relation. Okay, thank you so much.